morning students, welcome to today's video lecture of limits and derivatives. We have done the definition of limit of a function, when a limit can exist, when a limit cannot exist. We have done the definition of continuity of a function, and we have also done the theory okay, when a function is not continuous. Let us revise that theory again because it is important. Okay, suppose a function f is defined. Suppose a function f is defined on some interval not containing a, okay, not containing a. और अगर they have given, you know, suppose the limit exists, ये सारे मीनिंग्स आपको पता है, मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, तो अब उसका मुझे कुछ वापस रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है. और सपोज इट इज गिवन कि हियर लिमिट x टेंड्स टू a fx equal to L is given. Here variable क्या है? Here x is the variable. X is variable. A is constant. Fx is function in x. Fx is function in x. And L is a real number. Suppose the function f is defined on some interval not containing a. और हमको क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू L. x is the variable, a is the constant, fx is function in x, L is the fixed real number. So here, therefore, what we are having? We are having limit x tends to a fx equal to L. This limit exists. इसका मतलब क्या है? इसका different meaning means as variable x approaches nearer to constant a. Nearer to a, fx approaches nearer to L. ये उसका मतलब है सारे मीनिंग फिक्स हैं और ये फटाफट हम लर्न कर लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू L इज गिवन. उसका मतलब वेरिएबल x approaches very near to a and fx goes nearer to L. हाँ, x is not equal to a, that is understood. और इसको हम कैसे लिखेंगे? as x tends to a, double implication, as x tends to a, मतलब x tends to a, तब fx tends to L, goes nearer to L. उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं fx tends to L. Okay, as x tends to L, और हाँ तब x is not equal to a, then fx tends to L. ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो, then fx tends to L. और इसी चीज को हम सिंबॉलिकली ऐसे समझेंगे, as x tends to a, उसका मतलब as x tends to a fx tends to L, उसका मतलब x goes nearer to a, fx goes nearer to L. इस मीनिंग का लिमिट x tends to fx equal to L, this limit exists. इसके लिए सारे मीनिंग है जो आपको पता है. Now for x tends to a where x is not equal to a, x can approach a from left and x can approach a from right. So we are having x tends to a, x approaching a from left where x will be less than a, and x can approach a from right, इसको लिखेंगे x tends to a plus. For x tends to a where x is not equal to a, we will have x approaching a from left, x tends to a minus x less than a, and x can approach a from right. वो आपको पता है, वो हम लिखेंगे x tends to a plus when x is greater than a. या तो फिर मैं क्या करता हूँ, पहले वो डायग्राम से आपको बता देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. x tends to a, here x is approaching a, here x is approaching a. Since x is approaching a, since the variable x is approaching a, I can write x is not equal to a. X is not equal to a. X can approach a from left side, x can approach a from right side. This approach is known as x approaching a from right is x tends to a plus, but in this region x will be greater than a. X approaching a from left, that means x tends to a minus, but in that region x is less than a. तो आप लोग ये याद रखना कि therefore for x tends to a, double implication, for x tends to a
where x is not equal to a. We are having x can approach a from left, x tends to a minus, x is very near to a, but x is less than a, and x tends to a plus, x can approach a from right, x tends to a plus, उसका मतलब, but in that region x will be greater than a. और हाँ, लिमिट x tends to a, लिमिट x tends to a, fx equal to l का मतलब क्या था? x a के पास जाता है तब fx l के पास जाता है, fx हमेशा l के पास ही जाएगा, fx l को ही अप्रोच करेगा, x a को अप्रोच करे लेफ्ट से या x अप्रोच करे a को फ्रॉम राइट, x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट और x अप्रोचेस a फ्रॉम राइट, आप समझे? x a को अप्रोच करे लेफ्ट से या x अप्रोच करे a को फ्रॉम राइट, दोनों केसेस में fx इसको अप्रोच करने वाला है l को ही, as x approaches nearer to a from left, then also fx approaches l, तो उसको हम कैसे लिखते थे? as x tends to a minus, when x is less than a, fx approaches l only, मतलब fx tends to l only, और इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? इस चीज को हम क्या बोलेंगे? मतलब x is approaching a from left, at that time fx is approaching l, उसका मतलब क्या? उसका मतलब के लिए लिमिट fx का अप्रोचिंग नंबर l है और x अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम लेफ्ट, तो ये लिमिट हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसको हमने कैसे लिखा था? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू l, और इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज LHL. ओके नाउ सेकंड केस क्या था कि x approaches a from right, then also fx approaches l only, as x approaches a from right, symbolically मैं नहीं लिख रहा हूं, then also fx goes nearer to l only, approaches nearer to a from right, approaches nearer to a from right, then fx approaches l only, मतलब x a को अप्रोच करे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों केसेस में fx l को ही अप्रोच करता है जब हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू l. इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? as x टेंड्स टू a प्लस, when x is greater than a, at that time fx approaches l only, और ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट. व्हाई राइट हैंड लिमिट? बिकॉज fx अप्रोच कर रहा है l को, इसलिए वो लिमिट हो गई, अप्रोचिंग नंबर ऑफ fx है, और x अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम राइट, दैट्स व्हाई द राइट हैंड अप्रोच ऑफ x टुवर्ड्स it is fx approaching l, so that's why this is known as right hand limit. और राइट हैंड लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? RHL, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, RHL. ओके, और दूसरा यहाँ पे क्या था दोनों केसेस में? So just 1 minute. So that part is clearly done. We have done all the examples, तो ये अच्छे तरीके से हो गया, और आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, बोथ आर इक्वल. सो सिंपल वे में मैंने यहाँ पे क्या किया कि दोनों केसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिमिट, और यहाँ पे एक्चुअली क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, बिकॉज़ लिमिट एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल टू l. ठीक है? That is the meaning of limit x tends to a fx is equal to l. That is the meaning of limit x tends to a fx is equal to l. That is the meaning of limit x. मतलब अगर suppose limit x tends to a fx equal to l is given, मतलब वो limit exist हो रही है, तो उसके ये सारे मीनिंग्स होंगे. ये अब आपको अच्छे तरीके से लर्न हो चुका होगा, परफेक्टली क्लियर. ये सुनो, अब इसी को अगर
सिंपल वे में लिखना है, सपोज लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेट लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। सपोज ये लिमिट अप्रोचिंग नंबर, मतलब x a को अप्रोच करता है, तब fx जिस नंबर को लिमिट करता है, मतलब fx जिस नंबर को अप्रोच करता है, सपोज इट इज l, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx एग्जिस्ट करती है, और वो दोनों इक्वल है, इक्वल टू l। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आई कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आई कैन आल्सो से राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। आप समझ गए? अब मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, अगर सपोज दिस लिमिट इज गिवन, let limit x tends to fx equal to l, then I can say left hand limit exists, right hand limit exists, both are equal to l. Okay, and I can also say, okay, I will put it in different ways. Let I can also say from this, if this limit x tends to fx equal to l exists, then I can say individually that limit x tends to a minus fx is equal to l, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब LHL। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट। इसका मतलब सपोज दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू l, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी? राइट हैंड लिमिट इंडिविजुअली वी कैन से इज इक्वल टू l। राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, इसका मतलब अगर नोटेशन वाइज जाना है, इसका मतलब as x goes nearer to a, then x is not equal to a, fx approaches l। सिंपल। और इसका मतलब क्या था कि as x approaches a from left हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, so as x approaches a from left when x is less than a, then also fx approaches l। और लास्ट में क्या लिखोगे? as x approaches a from right, डबल इंडिकेशन, as x approaches a from right when x is greater than a, fx always approaches l। मतलब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x tends to fx एग्जिस्ट करती है and is equal to l, सपोज इट इज गिवन, मैथमेटिकली ये सारे उसके नहीं होंगे, दूसरी बार मैंने समझा दिया, अब कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए वो आप समझ गए होंगे। टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या दिया है? इन द टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन ऑन पेज नंबर 285 एक समरी में कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ओके, दे हैव गिवन के लिमिट x tends to a minus fx, limit x tends to a minus fx is expected value, this is here written, but the expected value of fx at x is equal to a, given the values of f near x to the left of a, this is called the left hand limit of a। Now see, this is really very okay, given the values of f, given the values of f near x to the left of a, near to the left of a, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f at a। So limit x tends to a minus fx is limit x tends to a minus fx, limit x tends to a minus fx को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx at x is equal to a, मतलब at x is equal to a मतलब वो a को अप्रोच कर रहा है, x is not equal to a, यहाँ पे लिखो आप, देखो near x to the left of a, okay, और f किसको अप्रोच कर रहा है? You see the definition given in the textbook is really very odd. Why I am giving? Because sometimes in some schools
they give this definition, so I just thought I should give it to you. It's your choice. अगर आप लिखो तो भी चलेगा, otherwise हमने जो लिखी है definition is the best one. Limit x tends to a plus fx is the expected value is the expected value of fx and x is equal to a given the values of f, given the values of f, given the values of f and near x to the right of a, near x to the right of a, to the right of a. Okay, fair enough. This is the definition of left hand limit what they have given, and that is the definition of right hand limit. और इस लिमिट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड. इस लिमिट को क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट. And limit x tends to a plus fx is को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट ऑफ fx at x is equal to a. Obviously for x tends to a plus means x is very near to a but x is not equal to a. Sometimes some students get definition अगर एक मार्क के लिए पूछते हैं तो prefer to write this definition only. और दूसरा, if both the limit coincide means if the left hand limit is equal to right hand limit then we say limit x tends to a fx exists. Okay, so if limit x tends to means if the left hand limit and the right hand limit coincide matlab if they are equal then we say limit x tends to a fx exists. Then we say limit x tends to a fx exists. I will give you few examples. Then I will give you few examples कि कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और वो समझने के लिए आपको पहले इजी सम्स करने पड़ेंगे. वो अगर डायरेक्टली मैं बताऊंगा तो आप फिर पागल हो जाओगे. मतलब आपको लगेगा कि ये चैप्टर बहुत 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 टफ है. टेक्स्ट बुक में जितने सम्स दिए हैं अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी 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 टफ. It is average only, so don't worry about it. Okay, so this part is done. Now, अब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? For this is very important. For limit x tends to a, for limit x tends to a, fx to exist. क्या क्या होना चाहिए? Following conditions. Following all conditions must be satisfied. Following all conditions must be satisfied. क्या क्या होना चाहिए? Can you recollect? पहला क्या था? For x tends to a मतलब x not equal to a, fx must be defined. मतलब function must be defined for x tends to a. ठीक है? तो दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और तीसरा क्या? चौथा क्या? बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो पहली चीज क्या थी कि for x tends to a, for x tends to a मतलब x approaching a where x is not equal to a, fx function fx must be defined. function fx must be defined. अगर वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. फंक्शन fx must be defined. must be defined. all condition must be satisfied मतलब and है. तो सेकंड में क्या आना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट मतलब लिमिट x tends to a minus fx must exist. उसका मतलब that is आप लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट और बाजू पे लिख दो आप LHL तो आपको याद रहेगा must exist LHL must exist. फिर राइट हैंड लिमिट must exist तो उसका सिंबल क्या था? लिमिट x tends to a plus fx must exist. लिमिट x tends to a plus fx must exist. right hand limit must exist. that is right hand limit. ये चीज आप एक बार फिक्स कर लो. राइट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट. एक बार ये फिट हो जाएगा सारी चीजें हैं तो आप आसानी से सम्स कर सकते हो. मस्ट एग्जिस्ट. और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल. मतलब क्या था? फोर्थ वन कि लिमिट x tends to a minus fx लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए एंड बोथ मस्ट बी इक्वल. लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? एक मिनट. और फोर्थ कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट. फिर
राइट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड दे मस्ट कोइंसाइड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आप समझ गए? तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? लिमिट x टेंड्स टू a fx कब एग्जिस्ट करेगी? जब ये फंक्शन for x टेंड्स टू फंक्शन इज डिफाइंड, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू a minus fx एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a plus fx एग्जिस्ट एंड बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट left is equal to right hand limit, left hand limit is equal to right hand limit, simple, that is LHL is equal to RHL, ऐसा लिखना है तो लिखो। अब कॉमन सेंस लगाओ कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट x टेंड्स टू a fx कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब any one of these conditions is not satisfied, that is LHL, left hand limit is equal to right hand limit, both left hand limit and right hand limit must exist and they must be equal। फिर दूसरा एक पॉइंट क्या किया था हमने कि लिमिट x टेंड्स टू a fx does not exist, ये लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, does not exist to many times DND does not exist if any one of the following conditions is, any one का मतलब और आएगा, तो मैं अब और नहीं लिखूंगा, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ऑल द फोर कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब उसमें एंड चल रहा था, ठीक है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इफ एनीवन, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इफ एनीवन ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, एनीवन ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस is not satisfied, is not satisfied if any one of the following conditions is not satisfied। पहली कंडीशन क्या है कि वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, for x tends to a when x is not equal to a, मतलब around a फंक्शन fx is not defined। अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो लिमिट कहां से एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन fx is not defined। सेकंड केस क्या है, और में लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट x tends to a minus fx does not exist, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, okay I will write DLE does not exist। थर्ड केस क्या, राइट हैंड लिमिट फंक्शन में डिफाइंड है पर राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब व्हाट डू यू मीन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब x a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से और fx एक यूनिक नंबर को अप्रोच नहीं करेगा, दैट मीन फिर सेम वे राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सपोज थर्ड केस में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये है राइट हैंड लिमिट, दैट इज राइट हैंड लिमिट मतलब RHL, दैट इज राइट हैंड लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं RHL, और बाजू में लिख दो DLE, D डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और फोर्थ केस क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, मतलब x a को अप्रोच करे फ्रॉम लेफ्ट तब fx एक यूनिक नंबर को अप्रोच करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे मतलब x a को अप्रोच करे फ्रॉम राइट तब fx एक यूनिक नंबर को अप्रोच करे तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बोथ एग्जिस्ट बट both are not equal, both are not equal means left hand limit exists, right hand limit exists but both are not equal। क्या लिखेंगे, left hand limit is not equal to right hand limit, right hand limit इसका मतलब क्या, that is LHL exists but LHL is not equal to RHL, both LHL RHL exist but they are not equal। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, मतलब वो एग्जिस्ट करती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट पार्ट इज वेरी वेरी क्लियरली डन। फिर वर्किंग रूल्स, मैंने आपको बताया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने क्या किया था, यू कैन राइट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ओके। तो सपोज आप ये सारे लिमिट्स एग्जिस्ट करने चाहिए कि सपोज लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a gx एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। तो वर्किंग रूल क्या है, पहला वर्किंग रूल क्या है, दो तीन बार लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a
fx प्लस gx, तो हम इंडिविजुअली लिमिट दे सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, मतलब लिमिट हम इंडिविजुअली प्लस माइनस में दे सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, वेट, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, ओके लेट मी राइट इट वे ओनली, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, yes we can apply individually the limit। अगर प्लस में है, आपने देखा होगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जहां पे आता होगा मोस्टली, इफ आई कैन रिकलेक्ट, ये मेजॉरिटी फिजिक्स में आता है, लिमिट का काफी एप्लीकेशन 11th स्टैंडर्ड में होता है, आई बिलीव इंटीग्रेशन का भी थोड़े थोड़े कुछ बेसिक फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन होता है, तो वो सारी चीजें आपको मोस्टली हेल्प होंगी once you do this limit and derivative। लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx को क्या होगा, इंडिविजुअली लिमिट आप दे सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g of x। We can supply individually limits in minus also। थर्ड क्या है, प्रोडक्ट में भी आप दे सकते हो, पर हाँ ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब ये दोनों इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करें। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो वर्किंग रूल हमें अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा वर्किंग रूल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a fx into gx, fx into gx, we can write this as limit x tends to a fx into limit x tends to a gx। इंडिविजुअली हम लिमिट प्रोडक्ट में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर नेक्स्ट वन क्या था, अगर डिवीजन में है तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि लिमिट x tends to a fx upon gx, we can write as, this limit can be written as limit x tends to a fx upon gx, limit x tends to a fx upon gx, that can be written as, न्यूमरेटर को आप लिमिट दे दो, लिमिट x tends to a fx upon डिनोमिनेटर फंक्शन gx को भी आप लिमिट दे दो। पर आप ऐसा कब कर सकते हो, हाँ ये लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, पर उसके साथ डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब gx जीरो नहीं होना चाहिए जब x टेंड्स टू a हो, और ये लिमिट x टेंड्स टू a वो भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी क्लियर। हियर अब क्या लिखोगे, हियर फॉर x टेंड्स टू a, फॉर x टेंड्स टू a gx जीरो नहीं होना चाहिए, एंड ये लिमिट भी जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx cannot be zero। तभी डिनोमिनेटर फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर की लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए। फिर क्या था, यस लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, और उसके पहले वो k fx, मैंने क्या लिखा था कि इन लिमिट x टेंड्स टू a, ये चार बेसिक इजी वर्किंग रूल आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर एक बार वापस लिखो कि फॉर इन लिमिट x टेंड्स टू a, इन लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to L, x is variable, please be very very careful, x is variable and a is constant, and a is constant and a is constant। Obviously fx is the function in L, so that is not a very important thing, and L is a real number, and L is a real number, yeah, okay। अब मैं क्या लिख रहा हूं, फिफ्थ वर्किंग रूल क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a k into fx, x इज अ वेरिएबल, तो बाकी के सारे लेटर कांस्टेंट, मतलब a तो कांस्टेंट है, एक बार इधर लिमिट x टेंड्स टू a k into fx, उसमें k कांस्टेंट आएगा, तो k लिमिट के बाहर निकल सकता है, सो k टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू a into fx, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो उसका मतलब लिमिट में से आप कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो। हियर k इज अ कांस्टेंट, हियर k इज कांस्टेंट, मतलब उसका फिक्स वैल्यू होगा, वो एक रियल नंबर होगा पर प्रेफरेबली नॉट इक्वल टू। k इज अ कांस्टेंट, मतलब वो एक फिक्स कोई नंबर होगा, इट विल बी अ रियल नंबर, we are taking real numbers only, so k will be a real number, it's a given real constant, पर प्रेफरेबली नॉट इक्वल टू 0। फिर जो 6th 5th बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा याद से याद रखने का,
और हाँ मैं उसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। फिर लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट ओनली, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। इसका मतलब दैट इज अगर हमने लिखा है देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, k, x is a variable, तो k कांस्टेंट, so limit of a constant is that constant only। अगर limit x tends to a, c आता है तो भी limit of a constant is constant, that is similarly okay suppose it is theta tends to a, हमेशा थोड़ी x होता है, theta tends to a अगर है और c इधर वेरिएबल x है, इधर वेरिएबल थीटा है और यहाँ पे सपोज c है, so limit of a constant is constant। और हाँ यहाँ पे हम लिखो k is constant, k is constant, obviously preferably not equal to 0, c is constant, okay, तो वो भी हो गया। now limit of a constant is constant and all those thing we have finished। now I believe कि काफी स्टूडेंट्स वो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a और वो चीज मेजॉरिटी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी, बट आई फील काफी बच्चों को समझ में आ भी चुका होगा पर फिर भी उनको हो सकता है डाउट्स होंगे और काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको उसमें थोड़े डाउट्स होंगे। सो व्हाट आई विल डू इज दैट मैं आपको ये समझाऊंगा तो आराम से अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आई नो यू आर फाइंडिंग इट बोरिंग, पर जितना अच्छे तरीके से थियोरेटिकल रिवीजन करोगे उतने सारे पॉइंट्स अगर आपको फिट है तो सब बहुत 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 इजी है। ओके नेक्स्ट टॉपिक क्या था? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी continuity at x is equal to a, obviously x is a variable and a is a constant और variable x is approaching a। आपको याद रखना है कि if और हाँ continuity at x equal to a, लिमिट के टाइम पे x must not be equal to a, पर अगर continuity या continuous ऐसा वर्ड आ गया तो x equal to a पॉसिबल होगा। तो थियरी क्या रखेंगे? suppose function f is defined, मतलब फंक्शन f is defined on some interval containing real number a, okay, containing real number a is a real, a can be 0 also। if ये आपको याद रखना है कि if limit x tends to a, limit x tends to a fx exists, मतलब लिमिट x tends to a fx exist का मतलब क्या? यू नो कि वो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, ओके। एंड इफ लिमिट अराउंड a x tends to a, मतलब मैं बोलूंगा कि अराउंड a, सपोज दिस लिमिट एग्जिस्ट a के आसपास हमको लिमिट x tends to a fx मिलती है एंड एट a we are getting f of a, so if limit x tends to a fx is equal to f of a, then f is said to be continuous, f is said to be continuous at x is equal to a। आप समझे? अगर वापस एक बार लिखो कि अराउंड a लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a में क्या होगा? इक्वल टू a पे f ऑफ a मिलेगा और नॉट इक्वल टू a नियर टू a पे लिमिट मिलेगा। तो सिंपल लिमिट अराउंड a, मतलब इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to value of the function at a, मतलब f of a, then f is continuous, f is continuous at x is equal to a। ये आपको पता चल गया। एक चीज मैं लिखता हूं, नो f of a का मतलब क्या है? f of a means at x is equal to a, f of a means here f of a functions में याद करना, f of a means value of function f, value of function fx, value of, it is value of fx at x is equal to, मतलब फंक्शन में आप x की जगह पे a रखोगे तो जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की उसको हम बोलते हैं f of a। तो ये हो गया कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में आपको क्या रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a fx must be equal to f of a, इतना आपको याद रखना है। मतलब लिमिट अराउंड a, लिमिट ऑफ fx अराउंड a is equal to value of the function at a। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, लिमिट ऑफ fx अराउंड a, अराउंड a मतलब
आसपास ऑफ a is equal to value of the function f at x is equal to a. If limit x tends to fx is equal to f of a, then we say f is continuous at x is equal to a. अब continuous function की लिमिट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. उसके पहले if limit x tends to fx is equal to f of a, then f is continuous at x is equal to a. अब ये फंक्शन कंटीन्यूअस कब होगा? वो आप याद रखो, f is continuous कब होगा? f is continuous at x is equal to a कब होगा? वो जरा हमको करना है. Just 1 minute. When it will be continuous. Okay. Right. Okay. अब कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन आपको पता चल गई कि f is said to be continuous. f is said to be continuous at x is equal to a if all of following conditions are satisfied. If all of following conditions are satisfied. ठीक है? ओके. फर्स्ट क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन क्या satisfy होनी चाहिए? कि ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और f of a एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए. तो सबसे पहले मैं लिखता हूं for x tends to a, मतलब x not equal to a, fx is defined. For x tends to a, मतलब x not equal to a, fx is defined. fx must be defined. ये डिफाइन होना चाहिए, must be defined. फिर सेकंड इज at x is equal to a, fx must be defined. मतलब must be defined मतलब f of a मिलना चाहिए. That is at x is equal to a, function is defined. उसका मतलब क्या है? ये f of a मिलना चाहिए. अराउंड ए नॉट इक्वल टू पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए अराउंड ए और एट ए फंक्शन इज डिफाइंड. थर्ड केस क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू a, fx मस्ट एग्जिस्ट. ये लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. फिर f of a मस्ट एग्जिस्ट. और दूसरा कंटिन्यूटी के लिए ये लिमिट x टेंड्स टू a, fx मस्ट बी इक्वल टू. फिफ्थ पॉइंट, लिमिट this limit must be equal to f of a. f is said to be continuous at x equal to a. कब कंटिन्यूटी कब होता है फंक्शन? लिमिट x tends to fx is equal to f of a. तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वो लिमिट for x tends to x not equal to fx must be defined. Focus on the word must, मतलब ये सारी चीजें satisfy होनी चाहिए. at x is equal to a, fx must be defined. limit x tends to fx must exist. f of a must exist and limit x tends to fx equal to f of a must exist. Must hold. Okay, so that is said to be continuous. अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, a function which is not continuous at a, उसको हम बोलते हैं function is discontinuous at x is equal to a. Okay, if लिखो definition भी लिख सकते हो अलग से कि if discontinuous function ऐसा लिखो, discontinuous function if f is not sorry if f is not continuous at x is equal to a, if f is not continuous at x is equal to a, then we say then f is said to be discontinuous. f is said to be discontinuous at x is equal to a. Then f is said to be discontinuous. Then f is said to be discontinuous at x is equal to a. अब तो discontinuous कब होगा? जरा सोचो. कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोला? discontinuous function मतलब if f is not continuous at x is equal to a, then f is said to be discontinuous at x is equal to a. नोट करके कंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं लिखते, रिकॉल करेंगे. नाउ f is
discontinuous, f is discontinuous at x is equal to a, or f is not continuous at x is equal to a. Kab is not continuous at x is equal to a. Just 1 minute. If any one of the following situation, if any one of the following condition, if any one of following conditions arise, any one of the following conditions arise, okay. अब आपको याद होना चाहिए कंटिन्यूअस का लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a. अगर आप सिंपल वर्ड में लिखे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट या f of a डज नॉट एग्जिस्ट और दोनों और, इसका मतलब फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है कि अगर कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए कि f is discontinuous if any of the following conditions arise. तो क्या होगा कि for x tends to a x not equal to a or at x is equal to a around a or at x is equal to a fx is not defined. fx is not defined. अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है अराउंड ए नॉट इक्वल टू f x तो चाहिए और at x is equal to a फंक्शन डिफाइन नहीं है तो आप सीधा लिख सकते हो f is discontinuous at x equal to a और f is not continuous at x equal to a. सेकंड केस क्या, भले फंक्शन डिफाइंड हो और लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट. अब ये कब एग्जिस्ट नहीं करती वो सारी सिचुएशन आपको बता है. मतलब कंटीन्यूअस होने के लिए लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करना चाहिए. आपको याद है कि कंटीन्यूअस कब होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करता है और f of a एग्जिस्ट करता है. पर अगर लिमिट x टेंड्स टू fx डज नॉट एग्जिस्ट तो ये भी क्या कहते हैं नॉट कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस. फिर थर्ड कंडीशन f of a, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू f of a इज नॉट डिफाइंड. f of a डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब f of a अगर नहीं मिले, लिमिट x टेंड्स टू a fx नहीं मिले तो डिसकंटीन्यूअस, f of a न मिले. और फोर्थ केस में क्या, लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, f of a also exists but both are not equal. Limit x tends to a fx, limit x tends to a fx is not equal to f of a. उसका मतलब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कब हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a और फंक्शन नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a कब होगा, अगर x tends to a नॉट इक्वल टू a, क्योंकि हमको लिमिट ढूंढनी है और x इक्वल टू a f of a होना चाहिए. तो for x tends to x not equal to a or x is equal to a and function is defined, function is not defined around a and at a, तो discontinuous at x equal to a. Limit x tends to fx does not exist, तो भी आप discontinuous बोल दो. f of a does not exist. Limit x tends to fx exists, f of a exists but both are not equal. अभी ये चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन is not continuous at x is equal to a. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपको कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a डिसकंटिन्यूअस फंक्शन उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा मोस्टली. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा लिमिट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस, मतलब अब हम आगे बढ़ सकते हैं सम्स करने पे, तो वो मैं आपको बताऊंगा. जस्ट 1 मिनट, आई हैव सम वाटर एंड देन आई विल कंटिन्यू. ओके, just recall f is continuous at x is equal to a. उसका मतलब है f is continuous at x is equal to a. उसका मतलब limit x tends to a, limit x tends to a fx exists, f of a also exists and both are equal. Okay, double implication. Yes. और उसको अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब सिंस दिस लिमिट एग्जिस्ट तो कहने से लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड f of a also exists. यस आई कैन से कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कंटीन्यूअस है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, f of a also exists and all three are equal. तो ये आपको पता चल गया
एक बार वापस लिख दो, f is continuous at x is equal to a, उसका मतलब क्या है? It means हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं f is continuous at x equal to a, उसका मतलब limit x tends to a fx is equal to f of a, उसका मतलब limit x tends to fx exists, f of a exists and both are equal. And since this limit exists, I can say left hand limit exists, right hand limit exists, continuous at x equal to a है मतलब f of a exists and all three are equal. And be very proper with the notations which are writing. If you don't write LIM, physics में काफी टीचर्स अरे काफी स्टूडेंट्स LIM और वो सब नहीं लिखते. See, be very careful while writing the notation. Be very proper and you see how I'm writing. Don't make that as a joke, and don't make the joke out of my hard work. Okay, so ये आपको पता चल गया f is continuous at x is equal to a. That point is clear. Now the most important thing which I'll be using for solving the questions, और जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के एंड में भी आपको समझाया, f is continuous at x is equal to a, उसका मतलब क्या? I will not be using the left hand limit and right hand limit वाला कोर्स. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या था? f is continuous at x is equal to a. So can I say limit x tends to a fx, limit x tends to a fx is equal to fx. I understand. f is continuous function at x is equal to a. उसका मतलब limit x tends to a fx is equal to f of a. So what I'm doing right now over here, try to understand what I'm trying to say. यहाँ पे f is a continuous function, f is continuous function, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? तो अगर f is a continuous function, then limit of a continuous function f around a कैसे निकाल सकते हैं? Limit of continuous function f can be obtained by substituting x is equal to a in the function, provided the denominator is not equal to 0. आप समझे? This continuous function at x is equal to a, f is continuous at x equal to a, तो limit x tends to a fx is equal to f of a. उसका मतलब continuous function f का लिमिट हम कैसे निकाल सकते हैं? फंक्शन में x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर a सब्स्टिट्यूट कर दो. अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसका लिमिट कैसे निकाल सकते हैं? फंक्शन में जाके x इज इक्वल टू अप्रोचिंग नंबर a सब्स्टिट्यूट कर दो. मतलब लिमिट ऑफ continuous function f can be obtained by substituting x is equal to a, by substituting x is equal to a, by substituting, just one minute, can be by substituting x equal to a in function fx, पर हाँ प्रोवाइडेड कि उस फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वो एग्जिस्ट करना चाहिए. हमारे सिलेबस में 0 by 0 ही क्वेश्चंस हैं. जो infinity by infinity है, which is not given in our textbook, sometimes might come in JEE, I will give it later on. Limit of continuous function f can be obtained by substituting x equal to a in function f, provided denominator in function, okay, I'll write it here. Okay, provided in function fx, provided denominator, मतलब वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिनोमिनेटर does not become 0. Denominator is not equal to 0. Provided denominator exists and x is equal. That is better way of writing. ठीक है, तो इसी चीज को एक बार आप वापस समझ लो. f कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस. f कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस. सिर्फ बोलने में टाइम बच जाएगा, पर लिखने में टाइम ज्यादा जाता है. But better is writing only, not reading. f is continuous at x is equal to a, मतलब f is a continuous function. So what I can write? Limit x tends to a, fx is f of a. उसका मतलब क्या? कि limit of continuous function f, how it can be obtained? It can be obtained. Limit of continuous function f can be obtained by substituting x equal to approaching number a in the function fx, provided denominator exists. Okay, that is ऐसा लिख दो, limit of
continuous limit of continuous function fx, continuous function f can be obtained. Limit of continuous function f can be obtained. Limit of continuous function f can be obtained by substituting x equal to a in function fx, in function fx, provided numerator and denominator exist. Provided numerator and denominator exist. Okay, provided numerator exists and 0 by 0 form है. Provided numerator and denominator both exist. Provided numerator and denominator both exist at x is equal to. See, मैं न्यूमरेटर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी-कभी न्यूमरेटर इंफिनिटी हो जाता है. Provided both nr and dr, both numerator and denominator, provided both numerator and denominator exists at x is equal to. Provided both numerator and denominator exist at x is equal to a. Clear? Yes, clear. अच्छे तरीके से. अब जो भी सारे फंक्शंस हैं जो हमने किए हैं, कौन कौन से फंक्शंस किए? पॉलिनोमियल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस मतलब जिसमें x आ जाएगा, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर रैशनल फंक्शंस मतलब पॉलिनोमियल अपना पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फिर लॉग किसमें आएगा? लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज लेना है आई विल गिव इट टू यू लेटर ऑन. डोंट वरी, अभी एक्सरसाइज में ये लॉगरिथमिक फंक्शंस का एप्लीकेशन नहीं है, सो आई विल गिव इट टू यू लेटर ऑन. पॉलिनोमियल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर आप लिखो पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, logarithmic and you can say exponential functions. These सारे functions are continuous on their respective domains. Okay, now what I will do is that let me solve the sums. तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा what I am trying to convey to you. Okay, तो first point is let me solve say example number 1. Example number 1 मैं solve कर रहा हूँ और जो भी क्वेश्चन हो लिमिट का उसको L लिखने का. ओके, लिमिट इज L. L कितना दिया हुआ है? लिमिट x tends to 1, लिमिट x tends to 1, लिमिट x tends to 1, x cube minus x minus x square plus 1. ये क्या है? x cube minus x square plus 1 क्या है? x cube minus x square plus 1 is a polynomial function, is an algebraic function. algebraic functions कैसे होते हैं? continuous. और continuous function का लिमिट कैसा मिलता है? उस फंक्शन में x की जगह में अप्रोचिंग नंबर सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रोवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एग्जिस्ट. ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और x किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को. तो x की जगह पे 1 रखने पर ये एग्जिस्ट करता है, s एग्जिस्ट करता है, तो x की जगह पे 1 रख दो. 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1. हां, x की जगह पे 1 लिख देने का, बिकॉज़ पॉलिनोमियल मतलब पॉली, फंक्शंस मतलब फंक, आर कंटी मतलब CONTI continuous. ऐसे लिखूंगा. I will write polynomial functions are continuous. I will write this way. बस हो गया सब. इतना क्या कर रहा है? 1 minus 1 plus 1 आंसर आया 1. फिर एग्जांपल 1 में ही सेकंड है L रखो उसको. लिमिट x tends to कितना दिया है? लिमिट x tends to अप्रोचिंग नंबर है 3 और क्या दिया हुआ है? x into x plus 1. ओके, x into x plus 1. ओके, अब आपको x से मल्टीप्लाई करना है, आपकी इच्छा. या फिर आप देखो x into x plus 1 ये क्या है? और यहाँ पे हम लोग क्यों लगाया? लिमिट ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड. पर वो सब डिटेल में नहीं जाना है. We will how to do this directly.
x क्या है? लीनियर फंक्शन। x प्लस 1 क्या है? लीनियर फंक्शन। तो दिस एक्चुअली अगर हम एक्सपांड करेंगे तो पॉलिनोमियल मिलेगा, अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा, एंड अलजेब्रिक फंक्शन का कंटीन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। और अगर आपको इसको अलग तरीके से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस x, now you know x² प्लस x, x² quadratic polynomial, x linear polynomial, so continuous functions हैं, तो what I can say continuous function है तो ये पूरा polynomial हुआ है, algebraic function हो गया। algebraic function क्या होता है? continuous। तो इसका लिमिट कैसे मिलेगा? लिमिट ऑफ continuous algebraic function कैसे मिलेगा? x की जगह पे approaching number 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, so 3 square plus 3, 3 square क्या होता है? 9, 9 plus 3 12, the answer yes। और हाँ आप रीजन लिख सकते हो, because poly function are continuous। अगर ये क्वेश्चन आता है एक मार्क के लिए तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और लिमिट में ही एग्जांपल नंबर 1 में आप देखो, लिमिट, that is a nice question, L is limit x tends to 1 plus x plus x square plus x cube x अपने तरफ से लिख रहा हूँ प्लस x raised to 10 है प्लस ओके एक्सक्यूज डॉट 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 till x raised to 10 इज द क्वेश्चन। आपको ज्यादा समझ में आए इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए इसके लिए मैं लिख रहा हूँ which is equal to limit x tends to 1, ये 1 है, प्लस x 1 plus x square plus x cube डॉट 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 और फिर x raised to 10 के पहले कौन होता है? x raised to 9 plus x raised to 10। What is this? 1 plus x, 1 is a constant function, 1 plus x square till x raised to 10, टोटल 11 टर्म्स हैं और x आता है मतलब वो अलजेब्रा हो गया। तो अलजेब्रिक फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, तो उसका मतलब x की जगह पे x अप्रोचिंग नंबर, ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है। उसमें क्यों ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है? क्योंकि उसमें वेरिएबल x आ गया। तो कंटीन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं, तो उसका लिमिट कैसे मिलेगा? पूरे क्वेश्चन में x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो और ये एग्जिस्ट करता है, उसके डिनोमिनेटर में 1 है, नो टेंशन, तो x की जगह पे 1 रख दो। कोई बोलेगा सर ये क्या है? लिमिट ऑफ 1, व्हाट इज 1 एक्चुअली? कांस्टेंट। तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट क्या था? कांस्टेंट, दैट्स व्हाई ये मैं पहले 1 लिख देता हूं प्लस x टेंड्स टू x की जगह 1 लिखो, मैंने 1 लिखा, फिर इधर 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस डॉट 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 1 रेज़ टू 9 प्लस 1 रेज़ टू 10। तो अब आप चेक करो, ये 1 पहला वाला प्लस ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस 1, 1 कितनी बार ऐड हो गया? 11 टाइम्स, 1 added 11 times, here 1 added 11 times, तो here 1 is added 11 times, तो हम क्या लिखेंगे? Because okay, I'm not mentioning the reason, because algebraic functions are continuous, because algebraic functions are continuous। ऐसा लिखो तो अच्छा है। सपोज दैट समटाइम्स हम एक मार्क के लिखते हैं तो 1 added 11 times, 1 plus 1 1 2 3 4 1 2 3 4 plus dot 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 plus 1 plus 1 added 11 times, 1 added 2 added 11 times, 2 11 into 2, so 1 added 11 times मतलब कितना आएगा? 11। yes, so that is very clearly we have done। तो अब ये पहला एग्जांपल मैंने किया, so now let us solve। what I will be doing is that I will give you the theory और उसी टाइप के क्वेश्चंस में आपको करते जाऊंगा। I will finish off the exercise 13.1, मतलब पहले सेम टाइप के सम्स हम करेंगे तो फिर मैं आपको वैसे ही सम्स सिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, यस यू कैन इजीली डू। पहले 5 के क्वेश्चंस तो आप आराम से कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ x प्लस 3। ओके, नाउ टेल मी x प्लस 3 कैसा फंक्शन है? लीनियर पॉलिनोमियल, दे आर कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे मिलेगा? x का अप्रोचिंग नंबर 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 plus 3 6। I believe you will write the reason, because polynomial लिख दो या algebraic लिख दो, because polynomial functions are continuous, polynomial functions are continuous। See, make it a habit of writing this reason, otherwise some teachers बोलेंगे यार डायरेक्टली कैसे लिख रहे हो? Okay,
नाउ सेकंड क्वेश्चन, यस कैन बी डन, फिर थर्ड फोर्थ, यस वी कैन डू इट। तो पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करते हैं ऑफ द सेम टाइप, फिर मैं एग्जांपल 2 भी ट्राई टू खत्म करूंगा। ओके, फर्स्ट सेकंड आप देखो, l इज लिमिट x टेंड्स टू पाई, x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, और क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस 22/7। ये कैसा फंक्शन है, x माइनस 22/7, इसमें अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा मतलब x आ रहा है, और अलजेब्रिक फंक्शन कैसे होता है, कंटीन्यूअस। तो x की जगह पे क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पाई माइनस 22/7। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 0। माय डियर स्टूडेंट्स, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है, इसलिए पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। तो प्लीज x की जगह पे पाई लिखने के बाद पाई माइनस 22/7 0 मत लिखना, क्योंकि 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई होता है। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर। ओके, दिस इज लीनियर फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, लीनियर फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। ओके, लीनियर फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। This is 13.1 के आंसर हम पीछे चेक करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। प्लस 1 मिनट, यस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 3 + 3 6 with pi minus 22/7। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, l कितना है, लिमिट, आप देखो लिमिट r टेंड्स टू 1, r टेंड्स टू 1 मतलब r वेरिएबल है, r टेंड्स टू 1, और फिर है pi r स्क्वायर, r इज अ वेरिएबल, तो पाई आर स्क्वायर मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो r अप्रोचिंग नंबर 1 है, तो r की जगह पे 1 आप रख सकते हो, तो पाई into 1 स्क्वायर इज पाई into 1 इज पाई, और आप लिख दो बिकॉज़ ये क्वाड्रेटिक है, सो क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। ओके, QUA मतलब क्वाड्रेटिक, फोर्थ पाई आंसर होगा, यस। अब आप फोर्थ देखो, l लिमिट x tends to 4, limit x tends to 4, 4x plus 3 upon x minus 2। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे, अरे सर ये ऐसा बड़ा सम क्यों कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉली रैशनल फंक्शन होता है। रैशनल फंक्शंस कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस, और कंटीन्यूअस फंक्शंस की लिमिट कैसे मिलेगी, x फंक्शन में x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 4 सब्स्टिट्यूट कर देने का, प्रोवाइडेड उसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना है। x की जगह पे 4 रखने पर डिनोमिनेटर क्या आता है, 4 - 2 एग्रीड है, मतलब एग्जिस्ट करता है, 4 - 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 4 × 4 +3 लिख सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल पॉली, सो रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे मिलेगा, x की जगह पे मैं 4 रखूंगा, x की जगह पे 4 रखूंगा, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली x की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 4 × 4 + 3 upon 4 - 2, 4 4 60, 60 + 3 90 upon 2। और हाँ, इधर आप लिख सकते हो बिकॉज़ रैशनल है, रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। ओके, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है तो 16 + 3 upon 2 which is 19/2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, क्वेश्चन 6 को बात करना है, 6 हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, मैं वो सम सॉल्व करूंगा जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों एग्जिस्ट करता है, और टू बी प्रिसाइज डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। 5th क्वेश्चन में है l इज लिमिट x टेंड्स टू -1 है, x अप्रोचिंग -1, x raised to 10 plus x raised to 5 plus 1, x raised to 10 upon x raised to 5 plus 1 upon x minus 1। ओके, न्यूमरेटर क्या है, पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर क्या है, पॉलिनोमियल। तो ये रैशनल फंक्शन हो गया। रैशनल फंक्शंस कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस फंक्शन की लिमिट कैसे मिलेगी, x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करने का, न्यूमरेटर में -1 सब्स्टिट्यूट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में करके देखो, x की जगह पे -1 को -1 क्या है, -2, डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है, तो x की जगह पे हम -1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इधर -1 raised to 10 plus -1 raised to 5, और एक कांस्टेंट है इसलिए 1 अपॉन, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -1 मैंने क्या बोला, सम्स बहुत इजी है एक्सरसाइज, बिकॉज़ रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस।
ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स काफी अच्छे हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। -1 रेज़ टू इवन नंबर इज 1 प्लस -1 रेज़ टू ऑड नंबर इज -1 प्लस ये 1 ही आएगा और यहाँ पे आएगा -2, सो 1 और -1 कैंसिल, आंसर इज 1 अपॉन -2 which is -1/2, -1/2 must be the answer। यस, मैंने क्या बोला, 6 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। यस, 7 8 9 व्हाट यू कैन डू इज दैट आप आराम से 9 भी कर सकते हो और 11 भी कर सकते हो। ओके, नाउ पहले मतलब 1 2 3 4 5 हो गया, 6 बाद में करते हैं, 7 बाद में करते हैं, 8 बाद में करते हैं, पहले 9 करते हैं। L is limit x tends to 0, limit x tends to 0, ax plus b upon cx plus 1। okay, what is this function? linear polynomial। तो पॉली के बाद पॉली रैशनल फंक्शन है और x की जगह में 0 रखने पर यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा, c into 0 क्या होगा, 0 0 plus 1 तो डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है, तो रैशनल फंक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं, तो उसका लिमिट कैसे मिलेगा, x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, a into 0 plus b upon c into 0 plus 1 कितना आएगा, 0 plus b upon 0 plus 1, आंसर इज b by 1 which is b। ओके, और यहाँ पे खाली आप मेंशन कर दो because rational functions are continuous, because rational functions are continuous। okay, now same way you can do the 11th one because that is quadratic polynomial upon quadratic polynomial। हाँ, और देखो एक कंडीशन भी दी हुई है उन्होंने, a plus b plus c is not equal to 0। एक्चुअली वो डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट्स व्हाई एक मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 11 टफ नहीं है पर कंडीशन उन्होंने दी है दैट सेट्स एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 11, L is limit x tends to 1, limit x tends to 1, ax square plus bx plus c whole upon ax square plus bx plus c upon cx square plus bx plus a। okay, okay, this is given and what condition is given, a plus b plus c is not equal to 0, a plus b plus c is not equal to 0। वो लिख दो बाजू में कि a plus b plus c is not equal to 0, a plus b plus c is not equal to 0। okay, quadratic polynomial upon quadratic polynomial, sorry, so polynomial function हमारा polynomial function rational function हो गया। rational functions continuous होते हैं तो उसकी लिमिट कैसे मिलेगी, x की जगह पे approaching number 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, so c into 1 square c होगा, b into 1 b होगा प्लस a, तो नीचे क्या आएगा, a plus b plus c, न्यूमरेटर में भी क्या आएगा, a plus b plus a, डिनोमिनेटर c plus b plus a not equal to 0 है, डिनोमिनेटर एग्जिस्ट, तो हम x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल मतलब ये क्या हो गया, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, तो x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर a, x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, a into 1 square plus b into 1 plus c whole upon c into 1 square plus b into 1 plus a। now 1 square is 1 into a, so I will write a plus b plus c upon, मैं नीचे क्या लिखूंगा, c plus b plus a। ठीक है, अब इसको हम कुछ स्टूडेंट्स इधर ही छोड़ देंगे, नो 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 नो, इसको आप लिखो, ये हो जाएगा a plus b plus c अपॉन a plus b plus c, ये हो गया। डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखते हैं, a plus b plus c अपॉन a plus b plus c, और आप देखो a plus b plus c नॉट इक्वल टू 0 है, इसके लिए डिनोमिनेटर नॉट 0, न्यूमरेटर नॉट 0। कोई भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन तो एग्जिस्ट करता है जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये मैं उठा दूंगा और कैसे होने पर आंसर आएगा 1, और ये मैंने कैंसिल किया, इससे मैं लूंगा a plus b plus c is not equal to 0, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, because rational functions are continuous। finished, start होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 1। ओके, नाउ ऐसे और कुछ क्वेश्चंस हैं, यस 12 भी है। नाउ लेट मी सी if there is some time and I will solve few examples also। okay, so time just 1 minute, yes we can solve। so
एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करें उसके पहले एग्जाम्पल नंबर 2. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 बिफोर. Okay. See, instead of solving example number 2, let me solve questions which are given in the textbook only. Okay, so सबसे पहले let me solve the question number 7, 8 and 12. तो पहले मैं 12 को solve करता हूँ. L देखो क्या लिखा है. L is limit x tends to minus 2, x tends to minus 2. न्यूमरेटर में क्या है? 1 upon x plus 1 upon 2. और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? x plus 2. अब जब भी ऐसे कुछ पॉलिनोमियल दिया हो या फ्रैक्शंस दिए हो तो आप क्या करो, आप डायरेक्टली x की जगह पे -2 मत सब्स्टिट्यूट करना. अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो, अब देखो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. अगर आप x की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो -2 + 2 कौन सा हो जाएगा? 0. -2 + 2 0 हो जाएगा. 10 मिनट इसको 0/0 फॉर्म. और should I just do it directly? Okay. What I am doing, पहले इसको सॉल्व करने के 2 अलग-अलग मेथड है, पर फिर भी पहले मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करता हूँ. ओके, तो अब इधर आप क्या करो, इसको सिंपलीफाई करो. टेक द एलसीएम 2 + x. टेक द एलसीएम 2 + x. 2 + x upon x into 2 मतलब 2x. लिमिट देखो, मैं लिमिट लिखना भूल गया. इज इक्वल टू लिमिट x tends to -2. फिर मैं लिख रहा हूं 2 + x upon 2x into 1 upon x plus 2. Agreed? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x tends to -2. इसको मैं लूंगा x plus 2 upon x plus 2 into 1 upon 2x. कितना आपको समझ में आ गया? ध्यान से देखना, बहुत इजी है. जस्ट अंडरस्टैंड द मेथड. दिस इज गिवन. अगर मैं x की जगह पे -2 डायरेक्ट लिखता हूं तो यहां -2 हो जाएगा. 1 upon -2 is -1/2, so -1/2 plus -1/2. न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर में -2 + 2 वो भी 0 हो जाएगा. तो एक्चुअली अगर आप देखो x की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करने पड़ते हैं, कौन से फॉर्म में है? 0/0 फॉर्म. मैंने क्या बोला? अगर आप मेजॉरिटी लिमिट के क्वेश्चन, सारे लिमिट के क्वेश्चन उसमें हमारे सिलेबस में x की जगह पे x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0/0 फॉर्म आएगा. तब उसका आपको खुद देता हूं, यहां पे आप चेक करो. x की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करोगे, -2 + 2 0, -2 + 2 0. ठीक है, 2 × -2 क्या होता है? -4. पर ये 0/0 फॉर्म आया है. यहां पे आप चेक करो. x की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करो, 1 upon -2 -1/2 + 1/2 0 हो जाएगा. -2 + 2 0 हो जाएगा. तो टू बी प्रिसाइज ये 0/0 फॉर्म है. ये ओरली करने का 0/0 फॉर्म. तो जब भी 0/0 फॉर्म है, एग्जाम में मत लिखना प्लीज. तब एलसीएम लिख लेना. एलसीएम ले लेने का. एलसीएम लेके मैंने इधर तक सिंपल कर दिया. अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? ध्यान से. हियर x tends to -2. हियर x इसको अप्रोच करता है. x approaches -2. तो x is approaching -2. But x cannot be -2. Yes or no? X cannot be -2. So therefore x is not equal to -2. Here x approaches -2. So x cannot be -2. -2 को राइट में लिखो तो x plus 2 will not be 0. Understood or not? What I am trying to say? ये सिंपलीफाई किया, फिर x किसको अप्रोच करता है? -2 को. तो x cannot be -2. So x plus 2 will not be 0. तो x plus 2 नॉन जीरो नंबर होगा. तो x plus 2 नॉन जीरो नंबर होगा तो वो लिमिट वापस लिखो. l क्या था? This is our l. This is our l. So l कितना था? l यहाँ पे सिंपलीफाई करने के बाद मुझे क्या मिला था? लिमिट x tends to -2 x plus 2 upon x plus 2 into 1 upon 2x. और x plus 2 कैसा नंबर है? नॉन जीरो. तो x plus 2 नॉन जीरो नंबर है, इसलिए मैं कैंसिल कर सकता हूं. तो therefore ये लिमिट l कैसे लिखेंगे? ये हम लोग लिमिट x tends to -2 बचेगा 1 upon 2x. और हाँ, यहाँ पे हमने कैंसिल किया, उसका रीजन किया x plus 2 is not equal to. अब 1 upon 2x. ओके, न्यूमरेटर में क्या है? 1 और 2x. 2 into -2 -4. तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? 1 upon 2x कैसा फंक्शन हो गया? रैशनल फंक्शन हो गया. और ये रैशनल फंक्शन, इस फंक्शन में आप x की जगह पे -2 लिखते हो
तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आता, या 0/0 फॉर्म नहीं आता, तो x की जगह पे हम -2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2 into -2। रीजन क्या, बिकॉज रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। क्या लिखोगे, बिकॉज रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। So L will be 1/-4. So limit is -1/4 because rational functions are continuous. फिर थोड़ा हो सकता है ये 2-3 सम्स मैं जब करूंगा तब आपको थोड़ा और लगेगा, बट वंस वी विल डू व्हाट आई विल डू, मैं एग्जांपल्स के भी ऐसे क्वेश्चंस आपको करके दे दूंगा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ऐसा और एक क्वेश्चन, लेट मी सी, ओके, okay, now okay, अब आप इधर से देखो, लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करता हूं। L is limit x tends to 2 और 3x square minus x minus 10 upon x square minus 4। अगर आप x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, x की जगह पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 क्या होगा, 0, तो वो 0/0 की 0 आएगा। और इसके बाद 2 सब्स्टिट्यूट करो इसमें, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 2 माइनस 10 और नीचे आएगा 4 माइनस 4, तो ये कौन से फॉर्म में हो जाएगा, ये 0/0 फॉर्म। आप समझ गए, x की जगह पे 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो, ऊपर पॉली नीचे पॉली, तो ये कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन कंटीन्यूअस है, x की जगह पे मैं 2 छाप देता हूं, x की जगह पे 2 मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। अरे ध्यान से बच्चा पार्टी, अगर मैं x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4, 3 into 2 स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 2 माइनस 10, कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म एट x इक्वल टू। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, आपको एग्जाम में 0/0 फॉर्म में है ऐसा बताने की जरूरत नहीं, फाइंड में करना है। सो फॉर न्यूमेरिकल फंक्शन हियर पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4, नाउ हियर पहले 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 का फैक्टराइजेशन करो, 3x स्क्वायर माइनस 10 3 30 माइनस 6x माइनस 6 प्लस 5। आप कर सकते हो, पहले मैं फैक्टराइजेशन अलग-अलग बता देता हूं, 3x into x minus 2 plus 5 into x minus 2, तो ये फैक्टराइजेशन क्या हो गया, therefore पहले मैं न्यूमेरिकल फंक्शन का फैक्टराइजेशन कर देता हूं, x minus 2 into 3x plus 5। ओके, अब x square minus 4 का फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है, x square minus 4 का फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है, एंड x square minus 4 वो होता है x का स्क्वायर, x square minus 4 is nothing but x का स्क्वायर minus 2 का स्क्वायर, so I can write that as x plus 2 into x minus 2। अब ये लिमिट L लिखो, लिमिट x tends to 3x square minus x minus 10, फैक्टराइजेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए, x square minus 4, इसी में लिखने की जरूरत नहीं है। So L is equal to, मैं लिखता हूं, therefore L is equal to limit x tends to 2, फैक्टराइजेशन क्या हुआ इसका, x minus 2 3x plus 5, okay, x minus 2 into 3x plus 5 whole upon ये आएगा x plus 2 into x minus 2। हाँ यार, अभी एक्चुअली 0 क्यों बनता है, एक्चुअली 0 क्यों बनता है, बिकॉज हमने जब फैक्टराइजेशन किया तो x minus 2 आता है, x की जगह 2 रख ले, बट 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, तो इधर प्रॉब्लमेटिक पार्ट कौन है, x minus 2, x minus 2 मतलब x tends to 2, x tends to a होता है, x tends to a है तो x minus 2 प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, x tends to a है तो x minus a 0 हो जाएगा, तो x minus a जो चीज tends to 0 है वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, तो यहाँ पे x minus 2 प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, तो कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली उड़ा दिए, ऐसे नहीं,
दिस इज अ वेरी इजी 2 मार्क क्वेश्चन। तो हियर x टेंड्स टू 2 क्या है? नाउ हियर x टेंड्स टू क्या है? 2। देयरफॉर x का वैल्यू लिमिट में 2 नहीं हो सकता 2 के आसपास, तो उस लॉजिक से x minus 2 cannot be 0, x minus 2 cannot be 0। तो therefore ये जो लिमिट है, लिमिट x tends to 2, ओके, इधर आप लिखो x minus 2 into 3x plus 5 whole upon, आप लिखो x minus 2 into x plus 2 और x minus 2 आप पूरा दो, क्यों? बिकॉज x minus 2 लिमिट के टाइम पे 0 नहीं होता, लिमिट के टाइम पे 0 नहीं होता। x tends to 2 मतलब x approaches to, मतलब x कभी 2 नहीं होगा, इसलिए x minus 2 कभी 0 नहीं होगा। x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1.99999, ये x की वैल्यू क्या हो सकती है? 2.00001। अब कोई टेंशन नहीं, प्रॉब्लमेटिक पार्ट, x minus 2 चला गया, क्या बचा? 3x plus 5 upon x plus 2। अभी क्या है? रैशनल फंक्शंस और एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, और x की वैल्यू 2 रखने पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो ये क्या लिखोगे? 3 times 2 into 3। अब l इसका लिमिट कैसे निकालोगे? रैशनल फंक्शन कंटीन्यूअस है और x की वैल्यू 2 रखने पर, x की जगह पे 2 रखने पर, x की जगह पे 2 रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह पे 2। सो 3 into 2 plus 5 upon 2 plus 2, so n कितना है? 3 to the 6 plus 5 upon 4, 11/4 आना चाहिए। ये 7 का आंसर है 11/4। बेसिकली आपको प्रॉब्लम है, जो चीज 0 होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिस चीज की वजह से लिमिट 0/0 फॉर्म होता है, उस चीज को कैंसिल करना है। यहाँ पे ये लिमिट 0/0 फॉर्म क्यों आ रहा था? x टेंड्स टू 2 है, तो देयरफॉर x minus 2 0 के आसपास जाएगा। x की जगह 2 रखने पर x minus 2 0 होता है, दैट्स व्हाई x minus 2 प्रॉब्लमेटिक पार्ट। तो मैंने फैक्टराइज करके उड़ा दिया। हां, इधर एक रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज़ रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। दीस आर यू कैन से स्टैंडर्ड 1 मार्क क्वेश्चन। अगर ये 2 मार्क में आता है तो आधा मार्क इसके लिए होगा और इसके लिए होगा। मेंशन द रीजन, अदरवाइज द टीचर कैन कैंसिल हाफ मार्क और 1 मार्क। ओके, पार्ट इज क्लियर नाउ। Let me solve one more question which I think we can solve is question number 8. Just 1 minute. Okay. So question number 8 हम solve कर सकते हैं। It's lengthy but फिर भी let me finish it off. अगर आप वो क्वेश्चन देखो, 8 देखो, 8L कितना है? लिमिट x टेंड्स टू 2 और x टेंड्स टू 3 और न्यूमरेटर में क्या है? x रेज़ टू 4 अपॉन 81, नीचे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अब आप देखो ये नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पे 3 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 रेज़ टू 4 81 माइनस 81 नीचे 3 स्क्वायर बाय 9 टू द 80 माइनस 5 इज 50 माइनस 2 कौन सा फॉर्म हो गया? ये 0/0 फॉर्म हो गया। मतलब x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करने पर हमको 0/0 फॉर्म मिलता है। तो उसका मतलब इधर प्रॉब्लमेटिक पार्ट कौन सा होगा? इधर प्रॉब्लमेटिक पार्ट कौन सा है? कौन सा फैक्टर, कौन सा टर्म इस लिमिट को अभी डायरेक्ट x की जगह पे 3 रखने पर डायरेक्ट लिमिट नहीं दे रहा है, x पे अप्रोच कर रहा है 3 को, तो x minus 3, तो x minus 3 हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब हियर x is to 4 minus 81 क्या राइट है? x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 या x स्क्वायर माइनस 9 इनटू x स्क्वायर प्लस 9 और x स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टराइजेशन आपको पता है x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये तो वैसे ही रहेगा। तो सी बेसिक अलजेब्रा आ रहा है, एक्सपांशन के फॉर्मूलाज आएंगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो ये सारे सम्स नहीं आएंगे। ट्रिगो आपको आना चाहिए और लिमिट की थ्योरी भी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो ये होगा x - 3 into x + 3 into x square plus 9। तो आपको याद रखना है x square x raised to 4 minus 81 x - 3 x plus 3 into x square plus 9। फिर डिनोमिनेटर में क्या है n
2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, उसका फैक्टराइजेशन करो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, सो 2x इंटू x माइनस 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 3, तो कितना आया x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, इजी। सेम टाइप इज एग्जांपल नंबर 2। पर एग्जांपल नंबर 2 मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया अभी, क्योंकि एक्सेल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी में इजी रहेगा। देयरफॉर व्हाट आई एंड अप गेटिंग 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 कितना आया x माइनस 3 into 2x plus 1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3 माइनस 3 into x स्क्वायर प्लस 9 सही है। 2 3 का 6 माइनस 6x, so 2x into x minus 3 plus 1। फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं आता है then you are calling for trouble। लिमिट x टेंड्स टू क्या था 3, न्यूमरेटर क्या था 2, सॉरी न्यूमरेटर क्या था x रेज़ टू 4 माइनस 81 और डिनोमिनेटर में क्या था 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब डायरेक्टली हम x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करके इसका लिमिट नहीं निकाल सकते, सो लिमिट x टेंड्स टू 3, फैक्टराइजेशन मैंने किया, कितना है उसका फैक्टराइजेशन x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 9 और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में था x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। ओके, तो x माइनस 3 वाला टर्म कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे फिर वो लेजी हो जाएंगे, तो वो डायरेक्टली x माइनस 3 का टर्म उड़ा देंगे। ऐसे मत करना, डोंट बी लेजी। और अगर आपको यहां पर ही कैंसिल करना है, अगर आपको यहां पर ही ये चीज कैंसिल करनी है तो लेट मी शो दैट। सपोज ये x माइनस 3 कैंसिल कर दो, तो उसका रीजन ऐसा लिखने का बिकॉज़ एज x टेंड्स टू 3 x cannot be 3, so x minus 3 cannot be 0। नीचे लिखा है सर, आपको पता है x minus 3 आपने कैंसिल कर दिया, उसका रीजन क्या है कि x टेंड्स टू 3, तो x is not equal, तो x minus 3 is not equal। तो अब ये लिमिट कौन से फॉर्म में आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 क्या बचा x plus 3 into x square plus 9 अपॉन क्या बचेगा 2x plus 1। ओके ना, एक भी टर्म इधर 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, इसकी जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 plus 3 into 3 square plus 9 और नीचे मैं लिखता हूं 2 into 3 plus 1। ओके, 3 plus 3 square plus 9, 2 into 3 plus 1। Make it a point you're writing because rational functions are continuous। तब 3 plus 3 6 into 3 square 9 9 plus 9 18 upon 3 to the 6 plus 1 7, so कितना है 18 6 108 by 7। yes perfect, 108 by 7। a standard 1 mark question or an easy 2 mark, you must write this, you must write this, ठीक है। so I think I will end today's lecture over here only। मुझे नहीं लगता आपको जो मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 30.1 के किए और एग्जांपल में किया उसमें कोई भी डाउट होगा। आई विल कंटिन्यू विद द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज, आई विल सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स एंड देन आई विल गिव यू फ्यू स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से सारे ट्रिगो के फॉर्मूलाज लर्न कर लेना। ओके, दैट्स इट। थैंक यू, वर्क हार्ड, टेक केयर।